Hello students, in this video we are going to solve the JEE Mains questions based on the chapter of dual nature of radiation and matter. Okay, so कुछ series of questions हम लोग देखेंगे इस chapter में based on dual nature. तो इस chapter में basically हम लोग जो questions देखेंगे that will be based on initially photoelectric effect. उसके बाद हम लोग देखेंगे second part is Einstein equations में and then wave nature of the particle nature of the wave or wave nature of particle के basis पे questions. So, चलो start करते हैं with the first question. Okay, so इस question में क्या दिया है? In a photoelectric experiment, increasing the intensity of light. अब यहाँ पे जब हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शंस क्या दिया है? Increase the number of photons incident and also increase the kinetic energy of ejected electrons. Okay. Second option, increase the frequency of the photons incident and increase the kinetic energy of the ejected electrons. Next question is increase the frequency of photons incident and the kinetic energy of the ejected electron remains unchanged, and increase the number of photons and the kinetic energy of the ejected electron remains unchanged. Now हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा है कि whenever see energy of photon is given by h nu, that is hc by lambda. Okay, so whenever हम या तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे यानी वेवलेंथ चेंज होगा तो उससे एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज होगी, बट इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होगा? इंटेंसिटी चेंज करने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा. सो इंटेंसिटी चेंजेस, so therefore number of photons also changes. तो अगर हम लोग इस पर ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी वर्सेस करंट, so this is photo current वर्सेस इंटेंसिटी. सो अगर मेरा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है so current will increase, intensity increases because intensity से number of photons बढ़ेगा. तो increasing the number of photons अभी दो options में है A और D में. अच्छा, लेकिन कहीं पे भी एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही है इंटेंसिटी चेंज होने से. सो क्योंकि एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड. हालांकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन ई वी नॉट, where V naught is stopping potential, E naught is stopping potential जो कि कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट होता है. सो इंटेंसिटी इंक्रीजेस, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस and the kinetic energy of the ejected electron remains constant. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D. Okay students, moving ahead with the next numerical. क्या दिया देखिए, in a photoelectric experiment ultraviolet light of wavelength 280 nanometer is used when lithium cathode having work function phi equals 2.5 electron volt. If the wavelength of the incident light is switched to 400 nanometer, okay, तो wavelength increase हुआ है. Find out the change in the stopping potential. Okay, so from Einstein photoelectric equation हमारे पास क्या है? Kinetic energy is equal to h nu minus phi naught, but kinetic energy is also equal to E V naught. So E V naught equals h nu minus phi naught, or h nu is c by lambda minus phi naught. This is E V naught. Equation 1, this is 2, this is 3. Okay, so हमें यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए V नॉट की वैल्यू. हाँ, दो कंडीशंस हैं. पहला वेवलेंथ जब 280 नैनोमीटर्स का, दूसरा वेवलेंथ जब 400 नैनोमीटर होता है. नाउ वर्क फंक्शन तो कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमें एच सी बाई लैम्डा को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू वर्क फंक्शन. तो फर्स्ट केस में हमारा लैम्डा इज 280 नैनोमीटर और यू कैन राइट इट एज 280 into 10 to the power minus 9 मीटर. तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास ई वी नॉट इक्वल्स एच इज 6.63
10 to the power minus 34. C is 3 into 10 raised to 8 upon lambda is 280 into 10 to the power minus 9 into 1.6 into 10 to the power minus 90 minus 2.5 if first case का electric potential stopping potential. So EV naught equals, this will be 19.89 upon 280 into 1.6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 484. So 448 into, now power is ऊपर आएगा 26 माइनस और नीचे 28 प्लस 28 प्लस ऊपर गया तो 28 सॉरी माइनस ऊपर गया तो प्लस तो इंटू 10 स्क्वायर. सो स्क्वायर कर देंगे तो आएगा माइनस 2.5 आएगा 1989 अपॉन 448 माइनस 2.5. अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा अराउंड, ये अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स हो जाएगा. ओके 5 से थोड़ा कम ही होगा. सो ये डिवाइड करके आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो you'll get around value 1.93 electron volt. Now this is EV naught. Electron cancel, so stopping potential is 1.93 volt. Now second केस के लिए हमारा जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर यानी 400 into 10 to the power minus 9 meter. Same way EV naught equals hc by lambda e minus phi naught. तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा वापस 19.89 into 10 to the power minus 26. hc मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 400 into 1.6 करेंगे. So 400 into 1 is 400, 4 is 24, 16, 4 is 64, so 640 into 10 to the power minus 28 minus 2.5. तो ये आएगा EV naught equals 1989 upon 640 minus 2.5. इसको अगर आप डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी 0.6 electron volt. This is EV naught 2. EE gets cancelled, so V naught 2 will be 0.6. Change in potential will be V naught 1 minus V naught 2. So that is 1.93 minus 0.60. So that will be 1.33 volt approximately. So अगर आप इसको चेक करेंगे 1.33 is option A. So हमारा correct option जो होगा वो होगा A. I hope students you understood this numerical. Okay students, moving ahead with the next numerical. क्या दिया देखें, two identical photocathodes receive the light of frequency f1 and f2 respectively. तो identical photocathodes है तो उनका work function दोनों का same होगा. Okay. If the velocities of the photoelectrons are v1 and v2 respectively, then okay, यहाँ पे देखिए velocity का difference है. Now from Einstein photoelectric effect we have kinetic energy is hf minus phi naught. mu की जगह f लिया हम लोग ने. So kinetic energy का formula is half m v equals hf minus phi naught. So for first particle frequency f1 है, velocity v1. सेकेंड के लिए हाफ एम v2 इक्वल्स hf2 माइनस फाई नॉट. मैंने फाई नॉट चेंज नहीं किया क्योंकि फोटो कैथोड सेम है. ओके सो वर्क फंक्शन दोनों का सेम होगा. फाई इज कांस्टेंट एज फोटो कैथोड आर आइडेंटिकल. Okay, so we have equation 1, we have equation 2. हमें velocities का difference चाहिए.
तो subtract 1 and 2, so we have half mv1 minus half mv2 equals h f1 minus h f2. phi naught will get cancel out, so यहाँ पे कॉमन है हाफ m, we have v1 minus v2, यहाँ पे h कॉमन है f1 minus f2, so v1 minus v2 will be 2h f1 minus f2 upon m. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर्स में है, कोई गलती कर दिया मैंने, सो उसको स्क्वायर्स ले लो, v1 स्क्वायर v2 सॉरी, तो यहाँ पे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स 2h अपॉन m f1 माइनस f2. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A. I hope you all are understanding, students. Okay, students, moving ahead with the next numerical. The stopping potential in a context of photoelectric effect depends on the following property of incident electromagnetic radiation. Okay. तो पहली बात तो फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच एफ माइनस फाई नॉट. बाय द वे काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी रिटन एज ई वी नॉट एच एफ माइनस फाई नॉट. लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट. सो यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. फाई नॉट भी तो वर्क फंक्शन है, उसका भी एच एफ नॉट ही आता है, तो वी नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एच और फाई नॉट कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी. So V naught depends on F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और किसी भी कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड नहीं करता है जैसे फेज, इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड. I hope students you have understood the question. Okay students, so moving ahead with the next question. क्या दिया देखिए, when the wavelength of radiation falling on a metal is changed from 500 nanometer to 200 nanometers, the maximum kinetic energy of the photoelectrons becomes 3 times larger. The work function of the metal is close to, work function हमें निकालना. Now wavelength changes from 500 to 200. Okay, the maximum kinetic energy becomes 3 times. So when lambda 1 is 500 nanometer, or you can write 500 into 10 to the power minus 9 meter. Okay, then my kinetic energy हम लोग इसको K1 लिख सकते हैं, और जब lambda 2 कितना हो गया 200 नैनोमीटर और 200 into 10 to the power minus 9 meter, then my kinetic energy becomes K2. So kinetic energy का फॉर्मूला क्या है, h न्यू और एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट. तो ये 1 फाई नॉट भी तो कांस्टेंट है. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी 2 लेंगे, सो हाँ इसको ऐसे करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 इसको हम लोग k लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 2 को हम लोग 3k लिखेंगे, K2 is 3k, K1 is k ले लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट. ओके, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1. तो सब्ट्रैक्ट 1 and 2. So subtract 1 and 2. तो हमें क्या मिलेगा, so इसको ऐसे करते subtract 2 from 1, sorry 1 from 2, subtract 1 from 2.
या फिर एक ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग k का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है, राइट, तो k का वैल्यू यहाँ से 1 2 में डाल देते हैं, तो सब्स्टिट्यूट 1 in 2, सो 3k वो कितना है hc बाय लैम्डा 1 माइनस फाइ नॉट इक्वल्स hc बाय लैम्डा 2 माइनस फाइ नॉट, तो ये हो जाएगा 3hc बाय लैम्डा 1 माइनस फाइ नॉट 3 फाइ नॉट इक्वल्स hc बाय लैम्डा 2 माइनस फाइ नॉट। ओके, तो फाइ नॉट इधर ये इधर आ जाएगा, तो 3hc बाय लैम्डा 2 माइनस hc बाय लैम्डा 1 माइनस बाय लैम्डा 2 इक्वल्स माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 फाइ नॉट। वर्क फंक्शन ही निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का वैल्यू दिया है, तो 3 लैम्डा 1 is 500 into 10 to the power minus 9 माइनस ये हो जाएगा hc अपॉन 200 into 10 to the power minus 9 2 फाइ नॉट। ये यहाँ पे जूल्स में आएगा हमें एनर्जी, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट फ्रॉम जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें डिवाइड बाय चार्ज करना पड़ेगा। ओके, तो पहले तो यहाँ तो कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा hc कॉमन, यहाँ गया और 10 रेज़ टू माइनस 9 भी कॉमन, 3 अपॉन 500, अच्छा 2 जीरोस कमी कर देते ना, तो 5 हो जाएगा माइनस 7, यहाँ पे माइनस 7 ले लेते हैं, 3 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू फाइ नॉट। So ये आएगा 3 by 5, 10, 6 minus 1 is 5 by 10, यानी 1 by 3 to the 6 और ये minus 1 5, तो आएगा 1 by 10, so we get 2 phi naught equals hc by 10 is to minus 7 into 1 by 10। अब hc का वैल्यू डाल देते हैं और डिवाइड बाय हमें चार्ज भी करना पड़ेगा, फाइ नॉट विल बी hc अपॉन 2 into 10 raised to power minus 7 into 1.6 10 raised to power minus 19, क्योंकि हमें जूल्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, और hc तो हमें आता है 19.89 into 10 raised to power 26, तो हो जाएगा 19.89 डिवाइड बाय 3.2 इंटू ये -7 -19 और ये 26 कट हो जाएगा, तो 19.89 अपॉन 3.2 इंटू यहाँ पे 10 बचा है, वो 10 मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, सॉरी आएगा 19.89 upon 32, so this will be approximately 0.62 electron volt। ये आ गया हमारा फाइ नॉट, so nearest answer है D, the correct option है D। I hope students you are understanding। Okay students, moving ahead with the next question, क्या दिया देखें, the stopping potential for an electron emitted from a photosensitive surface illuminated by light of wavelength 491 nanometer is 0.710 volt. When the incident wavelength is changed to new value, the stopping potential is 1.43, तो new wavelength निकालना है। Okay, so we have
इनिशियली हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ओके क्या दिया, देखिए पहले इनिशियली वेवलेंथ कितना, लैम्डा वन इज 491 नैनोमीटर और 491 इंटू 10⁻⁻⁹ ओके। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें जो मिला था वो है 1.43 वोल्ट, उसको V1 लेते हैं हम लोग। और जब मेरा वेवलेंथ लैम्डा टू हमें नहीं पता तो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सॉरी पहले केस में इट इज 0.71 और बाद में 1.43 वोल्ट, हमें न्यू वेवलेंथ निकालना। ओके सो आइंस्टाइन इक्वेशंस हमारे पास है ई वी नॉट इक्वल्स एच सी बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। ओके सो फाई नॉट क्योंकि मटेरियल वही है तो फाई नॉट तो कांस्टेंट होगा। सो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी है यानी एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स फाई यहाँ पे चले जाएगा, फाई नॉट प्लस ई वी नॉट हो जाएगा, राइट। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अगर मैं इसको सबको ई से डिवाइड कर दूँ, ओके राइट हैंड साइड को ई से, तो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी विल ओनली बी रिमेनिंग विथ ए नॉट। यहाँ पे ई आ जाएगा बट वो एट दी एंड हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसल आउट ही होगा। सो फॉर फर्स्ट केस के लिए इट विल बी एच सी अपॉन लैम्डा वन इक्वल्स फाई नॉट एच सी बाय लैम्डा वन इक्वल्स फाई नॉट अपॉन ई plus V1 and for second one Hc by lambda 2 equals phi naught upon E plus V2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो Hc दोनों में कॉमन आएगा, 1 अपॉन लैम्डा वन माइनस 1 अपॉन लैम्डा टू इक्वल्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, वी गेट V1 माइनस V2। ओके अच्छा सब्ट्रैक्टिंग 2 by 1 from 2, subtracting 1 from 2, lambda 2 minus lambda 1, तो डिफरेंस लेंगे दोनों का V2 माइनस V1, 1.43 माइनस 0.71 तो आएगा 0.72 वोल्ट। सो ठीक है, सो अब यहाँ से मैं लैम्डा 2 निकालना है, लैम्डा 1 तो हमें दिया ही है। ओके सो वी हैव, इसको पहले एच यहाँ लेके जाते तो 1 बाय लैम्डा 2 माइनस 1 बाय लैम्डा 1 इक्वल 0.72 अपॉन एच सी, 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल्स 0.72 अपॉन एच सी प्लस 1 बाय लैम्डा 1। ओके 0.72 upon Hc is 19.89 into 10 raised to power minus 26 plus 1 upon 491 10 to the power minus 9. So this is 1 by lambda 2. Okay. So नीचे मल्टीप्लाई ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 0.72 into 19.89 into 10 to the power into 491 10 to the power minus 9 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 19.89 into 10 to the power minus 20। ठीक है सो ये 1 by lambda है lambda 2, so your lambda 2 will be ये तो 491 into 19.89 10 raised to minus 35 होगा, तो डिनोमिनेटर में 0.72 into 491
-9 plus 19.89 into 10 raised to minus 26 that. So if we'll solve this value, you'll get approximately 381.7 nanometer lambda 2. 381.7 के approximate है 382, that is option number C. Then one more we can do this students, यहाँ पे आप डायरेक्ट डिवाइड करके ओके उनको ऐड करके रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, वैसे भी चलेगा. Okay students, so moving ahead with the next numerical. क्या दिया देखिए, the following figure shows few data points in photoelectric effect experiment for a certain metal. The minimum energy for ejection of electron from its surface is. Okay, now as you can see from the graph, on x-axis हमें दिया है frequency और y-axis हमें दिया है stopping potential. Now point A पे जो frequency दिया है वो 5 into 10 to 14 hertz. But for that my stopping potential is 0. Stopping potential 0 होने का मतलब है कि no electrons are ejected. अब अगर हम लोग पॉइंट बी देखेंगे तो वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके लिए भी हमें दिया है 0, बट वहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 5.5 इंटू 10 टू 14. एंड फॉर पॉइंट सी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी v होगा और उसके लिए जो ये दिया है फ्रीक्वेंसी वो है 6 इंटू 10 टू 14. तो a तो ऑलरेडी 0 है तो हम लोग a कंसिडर नहीं करेंगे, विल टेक पॉइंट b. हम लोग c क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि c इज लार्जर वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी a पे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो रहे, b पे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो हम लोग b कंसिडर करके चलते हैं. ओके, so from Einstein's equation we have E v naught equals h nu minus phi naught. ओके, ना हमें निकालने क्या बोला है, द मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मिनिमम एनर्जी होता है वर्क फंक्शन, तो हमें फाई नॉट निकालना है, दैट इज एच न्यू माइनस ई वी नॉट. ओके, नाउ हम लोग पॉइंट, जैसे कि हमने बोला कि हम लोग पॉइंट बी लेंगे. सो फॉर पॉइंट बी देखेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू, अच्छा न्यू की जगह हम लोग ने एफ लिया है तो चलो एफ ले लेते हैं. फ्रीक्वेंसी एफ is 5.5 into 10 raised to power 14 and v naught वहाँ पे 0 रखा है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फाई नॉट विल बी h इंटू एफ माइनस e इंटू 0, वो तो 0 हो गया. h 6.62 बोला है लेने इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 5.5 इंटू 10 टू द पावर 14. सो जो आंसर आएगा वो होगा जूल्स में, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए, तो डिवाइड बाय 4, सो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90, ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो ये हो गया 14, 34 माइनस 34 एंड 14 इज माइनस 20. 19 ऊपर गया तो प्लस 19, तो 10 बचेगा, तो 6.62 इंटू 5.5 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1. So when we solve this value, we multiply this value, this will be, अगर मैं approximate लूँ तो ये 1 टाइम हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा approximate, तो ये हो जाएगा 20 5 20 0 2 22 raised to power minus 1, तो हो जाएगा approximately 2.2. सो 2.2 के आसपास का आंसर है सी. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या दिया है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो यहाँ पे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ दिया है, थ्रेशहोल्ड यानी लैम्डा नॉट 380 नैनोमीटर. इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज 260 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ है 260 नैनोमीटर्स. The maximum kinetic energy of the emitted electron will be,
अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी बाय लैम्बडा, ये जूल्स में होता है। यहाँ पे लोग ने 237 बाय लैम्बडा इन नैनोमीटर दिया है, तब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम डायरेक्टली यही सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू माइनस फाई नॉट, बट फाई नॉट थ्रेशोल्ड के लिए होता है, तो इसको हम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, राइट? बट एच न्यू इज अर एनर्जी, so h nu is nothing but energy, so this will be energy, that is कितना एनर्जी हमें दिया है? 1237 अपॉन, now this is nu, that is lambda, lambda हमारे लिए कितना है? 260, तो 260, और h nu naught can be written as E naught, तो होगा 1237 अपॉन lambda naught, lambda naught हमारा कितना है? 380, so the maximum kinetic energy will be E minus E naught, so that is 1237 ब्रैकेट के बाहर हो सकता है 1 अपॉन 260 माइनस 1 अपॉन 380, ये आएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो दिस विल बी 1237, नीचे मल्टीप्लाई 260 इंटू 380, so this is 380 minus 260, so 1237 into, this is 120 upon 260 into 380, so 0 0 cancel, 2 6 are 2, 13 are 2 3s are 2, 19s are 3 7s are 21, 2 3 3s are 9 and 2 11, 1 3 2s are 6 and 1 7, 3 1s are 3 divided by 19 10s are 190, 19 3s are 57, so 200 and 19 247, this is zeros, so 47 2 zeros, and this will be 30. स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, we'll again divide this, so we have denominator में हमारे पास आया है 260 into 380, और वहाँ पे माइनस किया तो 120 हो गया, तो इसको हम लोग 260 to 130, 230 सा 2 190, so एक जीरो यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आएगा 1237, अभी हमने डिवाइड किया था वैसे ही 1237 into 3, so that comes as 3711, and if we divide 130 into 19 we'll get 2470. अगर हम लोग यहाँ पे देखें, so स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स आएगा, क्योंकि 1 जा करेंगे तो 240, यहाँ पे भी 1200 बचेगा तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो दिस भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स, तो 1.5 के यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी, so no need to solve the whole thing, just approximate value we can consider. Thank you. Okay students, moving ahead to the next question. We have photoelectric experiment. The wavelength of the light incident on the metal is changed from again 300 nanometer to 400 nanometer. So lambda 1 is 300 nanometer, lambda 2 is 400 nanometer. The decrease in the stopping potential is, यहाँ पे हमें hc upon e दे दिया है, okay, that is 240 nanometer, तो हमें लैम्बडा को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन वी हैव ई वी नॉट इक्वल एच सी बाय लैम्बडा माइनस फाई नॉट, क्योंकि मेटल चेंज नहीं हुआ है तो फाई नॉट कॉन्स्टेंट है, सो इसको न्यू 1 ले सकते हैं, तो एच सी लैम्बडा 1 हो जाएगा,
इसको ई ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा, तो ई वी टू विल बी एच सी अपॉन, अच्छा जूल्स में, सॉरी, इसको लैम्डा टू ले लेते हैं माइनस फाइव नॉट, तो डिफरेंस लेंगे, सो ई कॉमन वी वन माइनस वी टू, फाइव नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, एच सी कॉमन वन बाय लैम्डा वन माइनस वन बाय लैम्डा टू, वी वन माइनस वी टू, ये हो गया एच सी अपॉन ई, stopping potential, this is 1 by lambda 1 is minus 1 by lambda, एच सी अपॉन ई तो डाल दिया है 1240 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, सो लैम्डा 1 इज 300 minus 1 by lambda 2 is 400, this is 1240, so 400 minus 300 upon 3 4s are 12, 1 2 3 4, this is 1240 into 100 upon, we have 1 2 1 2 3 4, so 1 0 zeros, we 0 cancel, so 124 upon 120, सो अब ये देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा तो 1 हो जाएगा, सो 1 के आसपास का आंसर है डी, सो करेक्ट ऑप्शन है डी। सो आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग एड विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमारे पास क्या दिया देखिए, when a certain photosensitive surface is illuminated with a monochromatic light of frequency nu, ओके सो पहला फ्रीक्वेंसी न्यू से इल्यूमिनेट किया है, stopping potential for the photocurrent is minus V naught by 2, okay, and when the surface is illuminated by monochromatic light of frequency nu by 2, then the stopping potential is minus V naught, so हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है न्यू नॉट, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ई वी नॉट इक्वल्स एच न्यू माइनस फाई नॉट, ओके, सो पहले केस में हमारे पास कितना है, ई वी नॉट बाय 2 है माइनस, ओके, जब मेरा फ्रीक्वेंसी कितना है न्यू है, तो एच न्यू माइनस फाई नॉट, इक्वेशन 1 बना, और सेकेंड केस में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी माइनस वी नॉट है, जब मेरा फ्रीक्वेंसी एच न्यू बाय 2 है, फाई नॉट तो कांस्टेंट है क्योंकि फोटो सेंसिटिव मटेरियल सेम है, तो सब्ट्रैक्ट, वी सब्ट्रैक्ट 1 from 2, 1 from 2, यहाँ पे हम लोग 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो हमारे पास क्या आएगा, ई वी नॉट माइनस ऑफ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ई वी नॉट बाई 2 इक्वल्स एच न्यू बाई 2 माइनस एच न्यू, फाई नॉट कैंसिल, okay, so this will be, यहाँ पे 1 माइनस हाफ, माइनस 1 प्लस हाफ इज माइनस हाफ, तो माइनस ई वी नॉट बाई 2 इक्वल्स माइनस एच न्यू बाई 2 आएगा, ये भी हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, 2 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो मुझे ई वी नॉट कितना मिला, एच न्यू, इक्वेशन 3, अब 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस ई वी नॉट बाई 2, एच न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वी नॉट माइनस फाई नॉट इधर लिखे हो, इसको यहाँ पे लिखा हो, तो फाई नॉट आएगा ई वी नॉट प्लस ई वी नॉट बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 ई वी नॉट बाई 2, ये हो गया फाई नॉट इज माई, बट फाई नॉट इक्वल्स एच न्यू नॉट होता है, राइट, ओके, सो फाई नॉट की जगह हम लोग लिखेंगे एच न्यू नॉट इक्वल्स 3/2, और ई वी नॉट की जगह एच न्यू है, ये हमने 3 में डिराइव किया, ये सपोज 4 लेते हैं, तो ये एच और एच कैंसिल, तो न्यू नॉट हमें कितना आएगा 3/2 न्यू, सो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर
understanding. Okay, students, in this numerical, what we have given is the threshold frequency for a metallic surface correspond to an energy of 6.2 electron volt. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यू एच न्यू नॉट है और एनर्जी बोलेंगे तो एच न्यू नॉट, ये करस्पॉन्ड टू होगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज 5 वोल्ट, तो ई वी नॉट क्या हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द इंसिडेंट रेडिएशन लाइज इन, ओके, तो इंसिडेंट रेडिएशन हमारा क्या होता है एच न्यू, तो एच न्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फाई नॉट का मतलब क्या होता है एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ई वी नॉट इज एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो फाई नॉट यहाँ लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 6.2 प्लस 5 दैट इज 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हो गया एच न्यू नॉट. तो एच सी बाय लैम्डा विल बी 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो लैम्डा विल बी एच सी अपॉन 11.2. तो ये हो जाएगा एच इज 6.63 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8 upon 11.2 to 1.6 into 10 to the power minus 90. तो ये हो जाएगा जूल्स में. सो गया 19.89 अपॉन, अगर आप 11.2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 17.92 इंटू 10 टू द पावर, ना ये हो गया 26 माइनस 26 प्लस 19 इज माइनस 7. तो ये 19 और 17 अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आएंगे 10 टू द पावर माइनस 7. तो ये अराउंड 1000 जो भी होगा अप्रोक्सीमेट आएंगे, 1200 या जो भी कुछ के आसपास आएगा. 1.2 के आसपास, तो 1200 के आसपास, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एमस्ट्रॉन्ग यूनिट हो जाएगा. सो ये लेस देन विजिबल रीजन है, तो दैट इज योर अल्ट्रावायलेट. क्योंकि इंफ्रारेड तो तुम्हारा विजिबल से ज़्यादा आएगा, दैट इज 7000 एमस्ट्रॉन्ग से ज़्यादा, और एक्सरे तो हंड्रेड्स में आता है, तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा. हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ए. समझो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो विजिबल है वो तो हमारा होगा 3000 से लेके 7000 एमस्ट्रॉन्ग, तो ये 3000 से कम है. अब एक्सरे भी 3000 से कम है, बट एक्सरे हंड्रेड्स में आता है, तो बट ऑब्वियस हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो ए, और इंफ्रारेड तो 7000 से ज़्यादा आएगा, so that is not the answer. Correct answer is A. I hope students will understand it. Okay students, so in the next question, the anode voltage of a photocell kept fixed. The wavelength lambda of the light falling on the cathode is gradually changed. The plate of the current I of photocell varies as follows. Okay. Now students, हमें ये तो पता है कि energy of a incident radiation is directly proportional to frequency. So E is equal to h nu or hc by lambda. Now if lambda increases, the energy decreases, and if my energy of the incident radiation is less than my threshold work function, so my electron will not come out, and photocurrent, in that case current will become 0. So energy मतलब hc by lambda. Similarly work function का होगा hc by lambda naught. So if lambda is greater than lambda naught, then my photocurrent will become 0. So यहाँ पे जैसे हम लोग वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो अदर ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि करंट इंक्रीज हो रहा है, बट जैसे कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज होने से एनर्जी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से आफ्टर अ पॉइंट माय इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम आउट, हेंस माय photocurrent will become 0. So correct option है हमारा D. I hope you understood students. Okay students, the next numerical क्या दिया देखें. The surface metal is illuminated with the light of wavelength. The kinetic energy of the ejected photoelectron was found to be. The work function of the metal is. हमारे पास kinetic energy का फॉर्मूला क्या है, h nu minus phi naught.
The surface is illuminated with a light of wavelength 400 nanometer. A kinetic energy was found out to be 1.66 electron volt. हमें वर्क फंक्शन में फाई नॉट निकालना है, तो फाई नॉट विल बी h nu माइनस काइनेटिक एनर्जी. h nu is hc by lambda माइनस काइनेटिक एनर्जी. ना काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हमें hc by e को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो फाई नॉट विल बी hc इज 19.89 into 10 raised to power minus 26. अच्छा, upon lambda is 400 nanometer, तो 400 into 10 raised to minus 9 into e is 1.6 into 10 raised to power minus 90. तो 2 0 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 19.89 और हो जाएगा 6.4. इसका 2 zeros हमने इसके साथ किया तो ये हो गया -7, तो ये 2 zeros हो गया -7 एंड -19 इज 26 और ये 26 के साथ कैंसल आउट हो गया. अच्छा, बाय द वे काइनेटिक एनर्जी इज 1.68. काइनेटिक एनर्जी जो हमारा आया वो है 1.68. सो माइनस 1.68 हो गया. सो 19.84 को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी 19.89 को हम लोग डिवाइड करेंगे 6.4 से, जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 3.11 माइनस 1.68. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, so we'll get 1.43 electron volt approximately. So हमारे पास approximately आंसर है 1.42 electron volt. That is option B. तो हमारा जो correct option है वो है B. I hope students you understood. Okay students, next question. So here the anode voltage of a photocell is kept fixed. The wavelength lambda of the light falling on the cathode is gradually changed. The plate current of the photocell varies as. Now again, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन है, ओके, सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में, अगेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज h nu by lambda, sorry hc by lambda. तो इफ लैम्बडा इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस, बट जो हमारा फोटो करंट है वो एनर्जी पे इतना डिपेंड नहीं करता. फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट. सिर्फ इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड. उसके बाद फ्रीक्वेंसी अब कितना भी बढ़ाओ, द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. सो करंट इज इक्वल टू number of electrons. Current depends on number of electrons, that depends on number of photons, but number of photons depends on intensity, है ना. so wavelength और intensity is independent. इसका मतलब wavelength चेंज करने से करंट नहीं चेंज होगा. हाँ, बट अगर मेरा wavelength इतना बड़ा हो गया कि जब वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा हो गया तो मेरा फोटो करंट 0 हो जाएगा, बट इन बिटवीन दैट इट डजंट चेंज. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी. सो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. ओके क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, देखिए. अ फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे. When the same source of light is placed half meter away, then the number of electrons emitted by photocathode would be. Okay. So initial distance was 1 meter, final distance is half meter. हमारा जो intensity है वो inversely proportional to square of distance है. तो I2 upon I1 will be R1 upon R2 the whole square. तो वैल्यू डालेंगे तो 1/1/2 द होल स्क्वायर. तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 स्क्वायर, दैट इज 4. तो I2 विल बी 4I1.
सो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है। नाउ जो नंबर ऑफ फोटोन है एमिटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी से। सो मोर इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स से इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज होगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया दिखे हमें? टू सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nanometers. So the wavelength of X-rays is 1 nanometer and wavelength of visible is 500 nanometer. Both these sources emit light of same power. So power of X-rays is equal to power of visible, same है. The ratio of the number density of photon of X-rays to the number density of photons of visible light. तो number density of X-rays and number density of visible light. हालांकि number density क्या होता है? So number density is the total number of photons emitted per unit time. So per unit time में कितने number of photons emit हुए, इसको हम लोग बोलेंगे number density. अब power का actual formula क्या होता है? Energy emitted. Power is energy emitted per unit time. तो कितना एनर्जी एमिट हुआ? सो दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स into energy of each photon upon time, and number upon time and number upon time and number capital. So number upon time is number density into energy of each photon. तो energy of each photon क्या होता है? h nu और hc by lambda, क्योंकि वेवलेंथ दिए हैं। सो ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब पावर ऑफ एक्स रेज इज इक्वल टू पावर ऑफ विजिबल। तो नंबर डेंसिटी ऑफ एक्स रेज एच सी बाय लैम्बडा ऑफ एक्स रे इक्वल नंबर डेंसिटी ऑफ वॉयलेट एच सी अपॉन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। एच सी कैंसिल। So ratio of number density of photons of X rays to the number density of photons of visible is wavelength of X rays upon wavelength of visible. Okay, so हमें क्या चाहिए? The ratio of number density of photons of X rays to the number density of photons of visible. So हमें X rays upon visible चाहिए. So that will be wavelength of X-ray is 1 nanometer, violet is 500. So the ratio of number density of photons of X-rays to the number density of photons of visible. तो numerator में X और denominator में visible. So 1 by 500. 1 by 500 is correct option D. So I hope you understood, students. Okay, students. Moving ahead with the next numerical. A 2 milliwatt laser operates at a wavelength of 500 nanometer. तो पावर हमें दिया है 2 milliwatt यानी 2 into 10 raised to minus 3 watt. वेवलेंथ हमें दिया है 500 नैनोमीटर, तो इसको मैं 5 into 10 raised to minus 7 मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। -9 और 2 जीरो कम हो गए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, तो कैपिटल N/T हमें चाहिए is okay. So Planck's constant भी हमें दे दिया, C का वैल्यू भी दे दिया। सो पावर अगेन जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या था हमने कि जो पावर का फॉर्मूला है वो है एनर्जी एमिटेड अपॉन टाइम, दैट इज टोटल एनर्जी एमिटेड अपॉन टाइम। तो टोटल एनर्जी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन अपॉन टाइम। सो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम क्या आएगा? पावर अपॉन एनर्जी, और एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज एच सी बाय लैम्बडा। वैल्यू डाल दो, पावर इज 2 into 10 raised to minus 3, वेवलेंथ इज 5 into 10 raised to minus 7, एच सी तो हमारा 19.89 into 10 raised to power 19.8 into 10 raised to power minus 26 है। तो 2 5 are 10 upon 19.8 into 10 to the power, ये न्यूमरेटर में -10
26 ऊपर गया तो +10, तो ये हो जाएगा +16, सो 19.89, 10/19.89। अगर इसको मैं 100 कर दूँ और ये 198 इंटू 10⁻16, वैसे देखा जाए अगर 200 होता तो 100/200 तो 1/5, 1/2 यानी 0.5, तो 0.5 से ज़्यादा होगा ये, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 0.5 इंटू 10⁻16 और 5 इंटू 10⁻15 आएगा आंसर। So correct option is B. I hope students you all are understanding. Okay students, in a Frank-Hertz experiment, an electron of energy 5.6 electron volt passes through a mercury vapor and emerges with an energy of 0.7 electron volt. The minimum wavelength of the photon emitted by mercury atom is close to. अच्छा students, ये Frank-Hertz experiment है क्या? So basically in a tube, okay, there is mercury vapor. So suppose ये tube है, okay, इसके अंदर mercury vapors हैं, okay, and then we have electrons which are passed through this tube, यहाँ पे वो कोलाइड करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन जब पास होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन मर्क्यूरी वेपर्स के साथ कोलाइड करते हैं और मर्क्यूरी इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। और उसके हिसाब से फिर मर्क्यूरी एक्साइट होंगे, फिर जब उनके एटम डी एक्साइट होंगे तब वो एमिट करेंगे एनर्जी, ओके। तो जो एनर्जी एमिट करेंगे हमें उसका वेवलेंथ निकालना है। तो मिनिमम वेवलेंथ कब होगा? जब ज़्यादा एनर्जी, राइट। सो व्हेन द एनर्जी इज मैक्सिमम, then my wavelength is minimum, right? So the maximum energy absorbed by mercury, so maximum energy absorbed by mercury कितना होगा? सो द मैक्सिमम एनर्जी जो एब्जॉर्ब है, हमने पास कितना किया था 5.7 और इलेक्ट्रॉन बाहर आए 0.7 से, सो 5.6 माइनस 0.7, तो जो एब्जॉर्ब हुआ है वो है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज योर मैक्सिमम एनर्जी विच इज एमिटेड इज 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? hc बाय लैम्डा, तो लैम्डा विल बी hc अपॉन ई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 19.89 10⁻26 hc को आप मल्टीप्लाई करोगे तो और होगा 4.9 इंटू 1.6 10⁻90, 19 ऊपर गया +19, और अगर आप 4.6 को 1.6 से 4.9 को 1.6 से आप मल्टीप्लाई करोगे, so you will get 7 point approximately 0.89 upon 7.84 to 10 to the power -7। so ये आएगा, ये 7 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो 7 2 ज़ा 15, 2.5 के आसपास आएगा आंसर। so approximately 2.5 minus 7 मीटर और 250 नैनोमीटर। सो जो हमारा ऑप्शन है वो है ए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन पावर इन अ सोर्स ऑफ पावर ऑफ 4 किलोवाट प्रोड्यूसेस 10⁻20 photons per second. The radiation belongs to a part of the spectrum called, okay. So पावर हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एनर्जी एमिटेड per unit time. Energy is emitted is number of photons per second into energy of each photon, right? So energy power is n upon t, energy is hc by lambda, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंटू hc अपॉन पावर, वैल्यू डाल दो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज 10⁻20, hc is 19.8
into 10 raised to power minus 26 एंड यहाँ पे जो पावर है वो कितना है 4 किलोवाट, यानी 4 इंटू 10 रेज टू 3 वाट। तो यहाँ से जो वेवलेंथ आएगा वो होगा 19.89 डिवाइड बाय 4 इंटू दिस इज -16 अगेन -3 आ जाएगा। तो ये हो गया इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 मीटर्स। ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 मीटर्स। तो ये जो -19 मीटर्स है ये बहुत छोटा है, और इनमें से ये जो वेवलेंथ आएगा दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। I hope students you understood this numerical. Okay students, moving ahead with the next question. A moving proton and electron having the same de Broglie wavelength. Okay, if K and P denotes the kinetic energy and momentum respectively, then choose the correct option. Okay, so a moving proton and electron have same de Broglie wavelength. So wavelength of proton equals wavelength of electron, so constant रखते हैं. P is momentum of proton and PE होगा momentum of electron, K is kinetic energy. Okay, now de Broglie wavelength से हमें wavelength जो हमें मिलता है lambda is equal to h upon p, तो यहाँ से p will be equal to h upon lambda. Now since h तो already constant है and wavelength of proton equals wavelength of electron equals lambda, वो भी constant है, so momentum of proton will be equal to momentum of electron. जैसे हमारे पास 3 ऑप्शन है. ओके चलो तो काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला है h अपॉन अंडर रूट 2m k. k इज काइनेटिक एनर्जी. ऐसे k का वैल्यू क्या आएगा h अपॉन h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर करना पड़ेगा, राइट. ओके ना अब यहाँ पे क्या दिया है हमें कि वेवलेंथ तो कांस्टेंट है, सो काइनेटिक वेवलेंथ कांस्टेंट है, h सेम कांस्टेंट है, हटा दो 2 तो कांस्टेंट है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन. नाउ मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर है, so kinetic energy of electron will be greater than kinetic energy of proton. Kinetic energy of electron will be greater than kinetic energy of proton. तो हमें kinetic energy of electron is greater than kinetic energy of proton and momentum of proton equals momentum of electron. ये है मेरा फाइनल ऑप्शन. तो यहाँ से हमें kinetic energy ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है. So that will be a final answer, students. Okay, students. Moving ahead with the next question. यहाँ पे हमें क्या दिया देखिए, a electron moving with the speed v and photon is moving with speed c have same de Broglie wavelength. So वापस हमें वही दिया है that wavelength of photon is equal to wavelength of electron. So again lambda is equal to h upon p or p is equal to h by lambda. तो lambda constant है, so therefore फोटॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम सेम है. ओके, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटॉन इज, ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन दैट विल बी hc बाय लैम्डा. ओके, और इसको फिर मैं ये जो वैल्यू है फोटॉन का, ओके, उसमें मैं अगर यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला मोमेंटम वाला फॉर्मूला डाल दें, इक्वेशन 1 ले देते हैं, बट वी हैव वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन फोटॉन
का मोमेंटम, फोटोन का इज मास इनटू वेलोसिटी। सो डाल देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन मिलेगा hc अपॉन lambda is h upon m into c, h is cancelled, that will be m into c square, and kinetic energy of electron तो half m v square होता है। अच्छा, ये मास ऑफ फोटोन ले लेते और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। So kinetic energy of electron to kinetic energy of photon, so that is half me v square और क्या half mp c square। now masses तो नहीं पता, half ऑफ तो कैंसिल आउट हो गया। so masses नहीं पता तो यहाँ पे हम लोग me c square अपॉन mp me v square अपॉन mp c square कर देते हैं। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। नाउ क्योंकि मोमेंटम दोनों का सेम है तो मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ फोटोन इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन मास ऑफ फोटोन विल बी c अपॉन v। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको 3 ले लेते हैं, 3 को आप 2 में डाल दो तो kinetic energy of electron upon kinetic energy of photon will be c upon v into v square upon c square, right? I'm sorry, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये हाफ यहाँ पे रहेगा कि फोटोन में तो हाफ है ही नहीं ना, सॉरी। so ये हाफ रहेगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। so यहाँ पे आएगा 2, तो c 1 v, तो we get v upon 2c। so v upon 2c is your option number c। so हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है c। I hope students you understood। okay students, in the next question हमें क्या दिया देखिए कि an electron of mass me and proton of mass mp are accelerated to same potential। okay, potential difference same है। the ratio of de Broglie wavelength associated with the electron with the proton is, so de Broglie wavelength का formula is like h upon p, बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दैट विल गेट अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लोग डाल सकते हैं E इंटू 2m q इंटू वी। ओके ना, पोटेंशियल दोनों पे डिफरेंस सेम अप्लाई हुआ है, h कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मास ऑफ पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ पार्टिकल। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 1 अपॉन अंडर रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, whereas प्रोटॉन की बात करूं तो 1 अपॉन अंडर रूट मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, बट चार्ज दोनों पे सेम ही होता है। सो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विल बी अंडर रूट, इनवर्स है तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम ही होता है। सो वी हैव option number C, that is your correct option students। I hope you understood। okay students, in the next question क्या दिया देखिए, the speed of electron in a scanning electron microscope is 1 into 10 to 7 meter per second if the proton having the same speed। okay, so velocity of proton equals velocity of electron is 1 into 10 raised to power 7 meter per second, constant। the same speed are used instead of electron, then the resolving power of scanning proton microscope will be changed by a factor of। okay, now we have resolving power in a microscope is inversely proportional to wavelength। so resolving power of electron to the resolving power of proton is wavelength of proton upon wavelength of electron, but according to de Broglie lambda is h upon mv। so इसको हमने डालेंगे तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रोटॉन विल बी मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो दोनों का सेम है। सो रिजॉल्विंग पावर
ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएगा न्यूमरेटर में, मास ऑफ प्रोटॉन डिनोमिनेटर में। रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रोटॉन अपॉन रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल mass of proton upon mass of electron. So mass of proton is 1837 times greater than mass of electron. So resolving power of proton will have a factor of 1837 times that of resolving power of electron. So that is our option number A. So it will change by a factor of 1837. I hope students you understood this numerical. Okay students, moving ahead with the next question. क्या है? A particle is traveling 4 times as fast as that of electron. Okay, so velocity of particle is 4 times the velocity of electron. So velocity of particle upon velocity of electron is 4/1. Assuming that the ratio of de Broglie wavelength of a particle to that of electron, wavelength of particle to that of electron is 2/1, the mass of particle will be, so mass of the particle in terms of mass of electron निकालना है, तो lambda is equal to h upon mv. Okay, so h तो constant है, तो wavelength of proton of particle upon wavelength of electron equals mass of electron, mass of particle into velocity of electron, velocity of particle. Okay, so मुझे mass of particle चाहिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो mass of particle equal mass of electron into velocity of electron, velocity of particle into wavelength of electron, wavelength of particle. So mass of electron, now velocity of electron to that of particle, particle to that of electron is 4/1, so electron with that of particle is 1/4. Wavelength of proton with that of particle with that of electron is 2/1, so electron with that of particle is 1/2, so that will be 1/8 times mass of electron. So 1/8, that is our option number D, students. Okay students, in this question क्या दिया देखें, the de Broglie wavelength associated with an electron and a proton were calculated by accelerating them through same potential. तो potential difference दोनों के लिए same होगा, potential difference of electron and proton are same, that is 100 volt. What should nearly be the ratio of their wavelengths? So wavelength का formula is lambda is equal to h upon mv, that will be equal to h upon under root 2m q into v. Okay, that is charge of proton and charge of electron. अच्छा ठीक है, so हम लोग wavelength h constant है, v constant है, तो हम लोग wavelength जो है वो, अच्छा चार्ज भी कांस्टेंट है, दोनों प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास. So the ratio of their wavelength, so wavelength of electron upon wavelength of proton will be under root mass of proton upon mass of electron. So mass of proton in atomic mass unit is 1.00727 upon 0.00055. This is an atomic mass unit, that will be under root, this is 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, this will be 1.00727 upon 55. So इसको अगर आप डिवाइड करोगे, so you will get under root 1831.4. अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 40 के आसपास का जो स्क्वायर रूट होता है, 40 का तो 16 हो जाएगा एंड 41 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, तो क्या स्क्वायर्स भी है, तो ये तो दोनों भी स्क्वायर्स नहीं होंगे ऑप्शन में ए एंड बी, क्योंकि 1860 है और हमारे पास 1831 है, सो तो नहीं आएगा. अगर हम स्क्वायर रूट्स में देखें
तो ये होगा 40 से ज़्यादा है, तो 40 से ज़्यादा मतलब कितना, अभी यहाँ पे देखेंगे 41.4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1700 के आसपास ही आएगा। तो उससे भी ज़्यादा है तो ये हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 43/1 हो जाएगा, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। I hope students you understood. Okay students, again the same type of question है शायद, an electron of mass me and mass of proton in terms of mass of electron दिया है, moving at same speed, then the ratio of de Broglie wavelength is, de Broglie wavelength is lambda is equal to h upon mv। क्योंकि उन्होंने बोला सेम स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सेम है और h कांस्टेंट है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ हम लोग इलेक्ट्रॉन टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग लेंगे, वही चाहिए था हमें, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन तो ऑलरेडी दे दिया 1836 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो तो डायरेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। So this was a very easy question. Okay students, moving ahead with the next question, क्या दिया देखिए, the de Broglie wavelength of a proton and alpha particle are equal, ratio of their velocities. Okay, so यहाँ पे wavelength equal दिया है, so wavelength of proton is equal to wavelength of alpha particle. Wavelength का formula is h upon mv. Okay, so wave क्योंकि equal है तो h upon wavelength of proton equals wavelength of alpha. So h upon mass of proton, velocity of proton, that is equal to h upon mass of alpha particle, velocity of alpha particle. हमें velocities का ratio चाहिए, h gets cancelled. So velocity of proton upon velocity of alpha particle will be mass of alpha particle upon mass of proton. Now we all know that mass of alpha particle is 4 times mass of protons, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक मास नंबर 4 है। सो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन ऑन मास ऑफ प्रोटॉन, दिस गेट्स कैंसल, सो इट विल बी 4/1। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो these some questions are based on de Broglie wavelengths, so there's some sort of questions easy are there. Okay students, an X-ray tube is operated at 1.24 million volts. The shortest wavelength of the produced photon will be, तो shortest wavelength निकालना है, हमें वोल्ट दिया है 1.24 मिलियन वोल्ट्स, दैट इज 10⁶ वोल्ट्स। तो इसकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। नाउ एनर्जी ऑफ द फोटोन जो एमिट हो रहा है दैट इज एच न्यू, और यू कैन नॉट एज एच सी बाय लैम्डा। तो हमें वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ इज एच सी अपॉन ई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी इन, सो वेवलेंथ अभी निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू डाल के, तो दैट विल बी एच इज 6.63 10⁻⁻34, सी इज 3 इंटू 10⁻8 अपॉन एनर्जी कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.24 इंटू 10⁻6, so आएगा 6.63 इंटू 3 अपॉन 1.6 इंटू 1.24 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज -26, और इधर 19 और 6 13 पर गया तो +13, दिस इज -13 रिमेनिंग। So this is 19.89 upon, if we multiply 1.6 with 1.24, we are getting as 1.984 into 10⁻⁻13। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है that comes as 1
और ये 10 अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 10⁻⁻13 मीटर और 10⁻⁻12 मीटर। हमारे पास ऑप्शन नैनोमीटर्स में, इसको 10⁻³ कर सकते हैं, इंटू 10⁻9 तो नैनो हो जाएगा, 10⁻³ नैनोमीटर। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए स्टूडेंट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमें देखिए क्या दिया है कि a particle moving 5 times faster than electron. So velocity of particle is 5 times velocity of electron. So velocity of particle upon electron is 5 by 1. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of electron. Wavelength of particle to that of electron is 1.878 into 10⁻⁻4 meters. The mass of the particle is, so we have wavelength equals h upon mv. So wavelength of particle upon wavelength of electron is mass of electron, velocity of electron, mass of particle, velocity of particle. So यहाँ से wavelength of proton upon electron तो दे दिया है 1.878 10⁻⁻4, mass of electron upon mass of particle, velocity of electron, velocity of particle is 5 times velocity of electron, तो भी cancel out हो जाएगा. So mass of particle equal mass of electron upon 5 upon 5 into 1.878 into 10 to the power minus 4. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 9.1 10⁻⁻31 होता है. सो 5 8 40 0 4 5 7 35 39 0 3 5 8 again 40 3 40 3 4 5 1 4 is 9.30 into 10⁻⁻4. -4 ऊपर गया तो +4. मास ऑफ पार्टिकल is equal to 9.1 upon 9.39 to 10⁻⁻27. So 9.1 upon 9.39, so ये approximately 1 हो जाएगा, 1 के आसपास या 1 से थोड़ा कम कर सकते हैं. ओके, अगर मैं यहाँ पे एक 0 बढ़ा दूँ तो हो जाएगा 91 upon 9.39 into 10⁻⁻28, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है. -28 हमें मिला ना, ये 9 अगर हम लोग कर सकते हैं तो ये 10 टाइम्स, और ये 10 से थोड़ा कम ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा है. 10 से थोड़ा कम यानी डी ऑप्शन आ रहा है, विल बी अप्रॉक्सीमेटली 9.7 into 10⁻⁻28. Correct option is option number D. I hope students you all have understood this. Okay students, so we'll start with the next question. Now in this next question, what is given? Assuming the nitrogen molecule is moving with an RMS velocity at 400 Kelvin. Okay, so temperature is given as 400 Kelvin. The de Broglie wavelength of the nitrogen molecule is close to. So de Broglie wavelength हमें निकालना है. According to de Broglie wavelength, we have lambda is equal to h upon p, and p की जगह हम लोग ट्रांसलेट √2m k. K is our kinetic energy, but according to kinetic theory of gases, kinetic energy can also be written as 3/2 RT. So हमारा जो lambda का वैल्यू आ जाएगा, that will be h upon √2m 3/2 RT. 2 and 2 gets cancelled. H upon √3 R is n into kT, where n is your number of molecules. So हमारे पास डेटा सब क्या क्या दिया है, चेक कर लेते हैं. वेट ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सिंगल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो n1 हो जाएगा. ओके, सो वेट इज गिवन, दैट इज मास इज गिवन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गिवन, प्लैंक्स कांस्टेंट इज आल्सो गिवन. तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. लैम्डा इक्वल्स 6.63 into 10 to the power minus 34 under root 3
Mass of a molecule is 4.64 10 to the power 26 minus 26 kg. Boltzmann constant is 1.38 into 10 to the power minus 23 into temperature is 400 Kelvin. So all the data is given over here. So numerator में तो 6.63 आएगा और denominator में will have 3 into 4.64 into 1.38 into 400 को सिर्फ 4 ही रखते हैं हम लोग. पावर जो है ऊपर तो 10⁻⁻34 है, रूट के अंदर पावर होगा 26, -23 is 49, बट यहाँ पे 2 है तो 47 एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई कर देते हैं को, तो ये 46.4 ले लेते हैं, तो 10⁻40 -48 हो जाएगा, -48 बाहर आएगा तो -24. So we have 6.63 upon under root 3 into 46.4. जो 3 4 का 12 भी कर सकते हैं, तो 12 12 into 46.4 into 1.38 into 10 to the power 24 बाहर था तो ऊपर क्या plus 24 10 to the power minus 10. So if you solve this, the final answer will come around 0.24 into 10 to the power minus 10, that is 0.24 Armstrong unit. So the final answer आएगा वो है A. Correct option is A. I hope you understood, students. Okay students, moving ahead with the next numerical, we have when a photon of energy 4 electron volt strikes the surface of metal A, the ejected photoelectrons have maximum kinetic energy as TA. Okay, so photon energy of 4 electron volts is incident, then we have the maximum kinetic energy as TA and the de Broglie wavelength as lambda A. The maximum kinetic energy of the photoelectron liberated from the another metal B by a photon energy of 4.5 electron volt is TB, that is equal to TA minus 1.5 electron volt. If the de Broglie wavelength of these photons are lambda B equals to lambda A, then the work function of the metal B is the work function of metal B निकालना. Okay, so हमारे पास de Broglie wavelength तो है lambda is equal to h upon under root 2m kinetic energy, right? ये फॉर्मूला हमारे पास है. So for lambda A it will be h upon 2m. Now for A, kinetic energy, maximum kinetic energy is TA, and for B it will be h upon under root 2m, kinetic energy will be TB. ना कंपेयर करेंगे, हमें पे क्या दिया है, lambda B is twice lambda A, so lambda B is h upon under root 2m KB, sorry, TB. 2m TB is equal to twice h upon under root 2m TA, right? लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्क्वायर करेंगे, बाय द वे h कैंसिल आउट, 2m भी कैंसिल आउट हो गया. सो TA स्क्वायर करने के बाद तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स TB. क्वेश्चन 1, हमारे पास TB जो इक्वेशन दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इज TA minus 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो TA का वैल्यू हमें कितना आया, 4, TB minus 1.5, so 1.5 will go over here, so we get 3 TB equals 1.5. so maximum kinetic energy of B will be 0.5 electron volts. Now we have kinetic energy is equal to h nu minus phi naught. for हम लोग B की बात कर रहे हैं, so B पे जो एनर्जी इंसिडेंट हुआ वो है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो है 0.5. 0.5 इक्वल्स 4.5 माइनस 5 नॉट. तो 5 नॉट विल बी 4.5 माइनस 0.5. तो अगर हम लोग 4.5 माइनस 0.5 करेंगे तो हमारे पास वर्क फंक्शन फॉर बी विल बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड. Okay, students, moving ahead with the next question. Now, what is given? An electron of mass m and a magnitude of charge E, initially at rest, accelerated by an electric field. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t, ignoring the relativistic effect is. Okay. Now, since the electron is initially at rest and it is accelerated, so acceleration on the electron will be, acceleration is force upon mass. Now कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई. फोर्स इज Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो फोर्स विल बी Q, चार्ज यहाँ Q यहाँ पे चार्ज है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास. इक्वेशन नंबर 1. नाउ क्योंकि चार्ज मूव हो रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v इक्वल्स u प्लस ए टी. इनिशियली एट रेस्ट ये तो 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है? e इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो देयरफॉर मास इंटू वेलोसिटी कितना आया? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाइम. तो ये m इंटू वी बेसिकली क्या होता है? मोमेंटम. सो मोमेंटम मिल गया. डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? h अपॉन पी. तो लैम्बडा इक्वल्स h अपॉन पी का वैल्यू कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू टी, वेयर कैपिटल ई इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं क्या पूछा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम. सो इफ वी डिफरेंशिएट डी लैम्बडा बाय डी टी, यहाँ पे h कांस्टेंट बाहर, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, डी बाई डी टी. टी नीचे था तो टी ऊपर आएगा, टी इनवर्स कितना आ जाएगा? माइनस h अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ई कैपिटल ई, टी रेस टू माइनस टू, तो माइनस टू यानी नीचे आ जाएगा, यानी टी स्क्वायर. दिस इज डी लैम्बडा बाय डी टी. सो हमारे पास फॉर्मूला है सी. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज सी. तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा वेवलेंथ क्या हो रहा है? अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है विथ टाइम. I hope you understood, students. Okay, students, moving ahead with the next question. A particle A of mass m and charge q is accelerated by a potential difference of 50 volt. And another particle B of mass 4m and charge q is accelerated by a potential difference of 2500 volt. Then the ratio of de Broglie wavelength lambda A upon lambda B is close to. Now this is a very easy numerical, students. क्योंकि lambda का formula क्या है? h upon under root 2m kinetic energy. यहाँ पे हम लोग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो Q इंटू वी होता है, राइट? ओके. सो लैम्डा ए, सो लैम्डा बेसिकली h और 2 तो कांस्टेंट है, राइट? सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m q एंड v. सो अगर मैं रेशियो ले लूँ लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी तो उल्टा हो जाएगा. न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट एम बी क्यू बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी, और डिनोमिनेटर में एम ए क्यू ए एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए. सो दैट इज अंडर रूट एम बी अपॉन एम ए अंडर रूट क्यू बी अपॉन क्यू ए इंटू अंडर रूट वी बी अपॉन वी ए. चलो वैल्यू डाल देते हैं. क्या दिया है? ए का मास m है और b का मास 4m है. सो दिस विल बी 4m अपॉन m इंटू दोनों का चार्ज q ही है इंटू पोटेंशियल डिफरेंस a के लिए 50 है और b के लिए 2500 है. सो 0 0 कैंसिल, 5 1s are 5 5s are 25 and 0, right?
सो दिस विल बी, यहाँ पे m और m कैंसिल, तो अंडर रूट के बाहर 2 आया, ये तो 1 हो गया, इनटू यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू आएगा 50। 50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 2, सो 25 इंटू 2 इज 5 रूट 2, सो शायद मल्टीप्लाई भी करना है, ओके। सो 2 1s are 2, 5s are 10 into root 2. Root 2 is 1.414. So that is 14.14 by 1. That is lambda A upon lambda B. So जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है D. I hope students you have understood this numerical. Okay students, moving ahead with the next question. यहाँ पे क्या दिया देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल V are diffracted from a crystal if D equals 1 angstrom, angle of incidence 30 degree, should be about, V should be about, okay. So यहाँ पे देखिए क्रिस्टल लैटिस है, ये हो गया हमारा D, नाउ ये हो गया नॉर्मल, तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट डायफ्रैक्टेड रे, सिमिलरली ये इंसिडेंट, ये डायफ्रैक्टेड, तो इसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे था तो ए यहाँ पे होगा, और ये इसके अकॉर्डिंगली बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सिमिलरली ये भी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये एडजेसेंट साइड बनेगा, तो एडजेसेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2d cos I इक्वल्स एन लैम्डा, दैट इज अ ब्रैग्स लॉ। जब यहाँ पे एंगल बनता है तो ऑपोजिट होता है, यहाँ पे एंगल बना इसलिए एडजेसेंट है, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है। तो हमारे पास एन लैम्डा की जगह तो हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस डाल सकते हैं, h अपॉन अंडर रूट 2 m ई इंटू एन, हमने 1 ले लिया है तो वैल्यू डालेंगे, सो d इज 1 एंगस्ट्रॉम इन 10⁻⁻⁻, cos I is 30 डिग्री, h is 6.63, 10 to the power minus 34 upon under root 2, mass is 9.1, 10 to the power minus 31, 1.6 into 10 to the power minus 19, और v तो हमें निकालना है। सो cos 30 तो रूट 3 बाई 2 होता है, 2 इंटू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा रूट 3 इंटू 10⁻⁻10, ये हो गया 6.63, इसको स्क्वायर भी कर देते हैं हम लोग, तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट 3 की जगह 3 आ जाएगा, ये 6.63 इंटू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 68 अपॉन, ये हो गया 18.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50 v, ओके। सो यहाँ से v यहाँ पे चला जाएगा, तो दिस विल बी 6.63 तो कुछ 43.3 होता है, 10 टू माइनस, अच्छा ये स्क्वायर था तो ये -20 हो जाएगा, सॉरी, सही हो गया, तो मैं -20, तो -20 और -50 -70 ऊपर गया तो +70 इंटू 10⁻² हो गया, और ये 18.6 इंटू 1.6 इंटू 3 करेंगे तो 87 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वी विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.549 इंटू 10⁻², दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50 volts potential difference. I hope students you understood. Okay students, moving ahead with the next numerical, क्या दिया देखिए, the wavelength of an X-ray beam is 10 angstrom. Okay, so wavelength दिया है, that is 10 angstrom, 10 to the power minus 10 meter. The mass of a fictitious particle having the same energy as that of X-ray photon is m equals x upon 3 h kg. The value of x is, हमें x का वैल्यू निकालना, ओके। सो हमारे पास एनर्जी नहीं, हम लोग काम करते हैं एनर्जी क्योंकि सेम है, सो हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, यहाँ पे m इंटू सी हो जाएगा, यहाँ से c का जो फॉर्मूला है, मास का जो फॉर्मूला है, दैट विल बी h अपॉन लैम्बडा इंटू सी, तो h हमारा एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि x h एज इट इज है, लैम्बडा हमारा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 है,
और सी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है। तो यहाँ से हमें मिलेगा h अपॉन सॉरी a प्लस 8 है। तो ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 10 इज टू पावर 1 है। तो 8 प्लस 1 9 माइनस 1 इज 10 इज टू माइनस 1। तो ऊपर आ जाएगा 10 h अपॉन 3। ये हमारा मास है। अब इस मास को हम लोग जो गिवन मास है दैट इज x h अपॉन 3 से कंपेयर करेंगे। ये भी kg है, ये भी kg है। तो x की वैल्यू हमें क्या कंपेयर हो रही है, वो हो रही है 10। तो 10 है हमारा करेक्ट आंसर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो आपको सॉल्व करके खुद से ही आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, कभी कभी हो सकता है ऐसे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।